If I ask you, what do you mean by the term life processes? So life processes का मतलब क्या होता है? The processes that are essential for survival of an organism. Processes that are essential for survival of an organism are called what? Life processes. Okay. So आपको अगर पूछा जाए, give 2 examples of life processes. Anyone? Respiration, digestion. Nutrition, growth. रेस्पिरेशन एक प्रॉपर एग्जाम्पल है. डाइजेशन नहीं बोल के हम लोगों को न्यूट्रिशन बोलना चाहिए. क्या बोलना चाहिए? न्यूट्रिशन. इंस्टेड ऑफ डाइजेशन वी शुड यूज द टर्म न्यूट्रिशन. ओके. So if I ask you, what do you mean by the term life processes? The processes that are essential for survival of an organism. And 2 examples, respiration and nutrition, kam se kam yaad rakhna. Besides that, excretion, circulation, growth, development, reproduction, they are also what? Life processes. तो ये चैप्टर का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं एक क्वेश्चन से, और उस क्वेश्चन रिलेट करता है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. इट इज रिलेटेड टू व्हाट? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. द क्वेश्चन इज, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव? तो अगर मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन करता हूं, इफ आई आस्क यू, अंकिता वर्धन, if I ask you, can you tell me 2 characteristics of living organism? Ankita. Ankita, can you hear my voice? अंकिता की तरफ से कोई आंसर नहीं आ रहा है. If I ask Mahi Gupta, can you tell me 2 characteristics of living organism? Yes, sir. Just tell. Sir, in Mahi, you just tell. Ankita, एक बार आप रुक जाओ. Sir, in living organism, respiration takes place and Okay. there is growth in shape, size. Okay, correct. Living organisms grow. Living organisms can respire. Living organisms grow and living organism can respire. लेकिन यहाँ पे discussion है that the most important criteria to decide whether something is living or not is the movement. Okay, it is what? Movement. Movement is one of the criteria to decide whether something is living or not. We tend to think of some sort of movement, either growth related or not, as common evidence forming a life. तो यहाँ पे बात है कि movement is one of the condition to decide whether something is living or not. लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन कर सकता हूँ, क्या मूवमेंट से हम लोग फाइनल डिसीजन ले सकते हैं? इफ समथिंग इज मूविंग, उसको अलाइव बोल सकते हैं क्या? ना सर, नहीं बोल सकते, क्योंकि आप अगर फैन देखोगे, फैन का ब्लेड्स अभी आपको मूव करते हुए दिखाई देगा, तो क्या उसको लिविंग बोल देंगे हम लोग? नहीं ना सर. आप एक प्लांट को देखोगे पॉट में, तो वहां तो कुछ भी मूविंग नहीं है, फिर भी वो लिविंग है कि नहीं? That means movement is one of the condition, but movement is not the final condition to decide whether something is alive or not. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes. Yes. Sir. But a plant that is not visibly growing is still alive. A plant that is not visibly growing is still alive. Some animals can breathe without visible movement. कुछ एनिमल्स को आप देखोगे तो देखने से पता ही नहीं चलेगा, चेस्ट रीजन को भी देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि वो ब्रीथ कर रहा है, लेकिन वो अलाइव है. आप एक स्लीपिंग डॉग को देखोगे, डॉग इन स्लीपिंग कंडीशन, तो दूर से आपको कोई मूवमेंट नजर नहीं आएगा. इसका मतलब क्या? उसको आप डेड कंसीडर करोगे? नहीं. So movement is one of the condition to decide whether something is living or not, but it's not the final condition. So using visible movement as the defining characteristic of living or life is not enough. Okay? आया समझ में? Have you understood? Yes. Yes, Huh? sir. Yes, sir. Okay. So यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया about movement is one of the characteristic to decide whether something is living or not. So what we discussed
We discussed that movement is one of the condition to decide whether something is living or not, but it is not the final condition. क्योंकि ऐसा बहुत मूवमेंट है जो हम लोग को दिखाई भी नहीं देता. फॉर एग्जाम्पल मॉलिक्यूलर मूवमेंट, movement over very small scales will be invisible to the naked eye. Movement of molecules, for example. Is this invisible molecular movement necessary for life? Okay. Is this invisible movement necessary for life? Yes, sir. Okay. सिराज आप लेट एंट्री किए हो गोयंका? हाँ सर वो लैपटॉप से किया था एंट्री. अभी मतलब अभी एंट्री लैपटॉप से है, नहीं तो सर फोन से भी हम एंटर्ड है, अभी लीव करेगा फोन से. ओके. ऐसे आप कंफ्यूज मत करो आप लोग क्लास को, ठीक है? हाँ सर. Is this invisible molecular movement necessary for life? Molecular movement means biochemical reactions. Molecular movement means what? Biochemical reactions. So are biochemical reactions essential for life? Yes or no? Yes, sir. Can you give example of such biochemical reactions or molecular movement? Examples of molecular movement? Respiration. Okay, respiration is one such. Another example? Digestion. So digestion. Digestion नहीं बोलते, न्यूट्रिशन बोलना ज्यादा अच्छा है. न्यूट्रिशन. एब्जॉर्प्शन. ओके, एब्जॉर्प्शन नहीं बोल के न्यूट्रिशन बोलने से सब इंक्लूडेड हो जाता है. ओके. जय बाजोरिया, आर यू देयर? Yes, sir, I am there. आप भी एक और डिवाइस से एंट्री हो रही है आपका? सर नहीं, हम तो सिर्फ सर एक ही डिवाइस से कर रहे हैं सर, और कोई डिवाइस नहीं है. Just wait. So what we were discussing that there are some kinds of movement which are invisible to the naked eye, and that movements are called molecular movement, biochemical reaction. And here the question is this invisible molecular movement necessary for life? So iska answer is yes. These molecular movement in biochemical reaction, for example, respiration, it is essential for living organism. Photosynthesis is essential for plants. So molecular movements or biochemical reactions are necessary in living creatures as they must keep repairing and maintaining their structure. आपका बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए प्रोटीन चाहिए. प्रोटीन कौन बनाएगा? राइबोसोम्स. कैसे बनाएगा? बाय बायोकेमिकल रिएक्शन. लेकिन हम लोग अभी डिस्कस कर सकते हैं अबाउट वायरसेस. वायरसेस एक अलग एंटिटी है. वायरसेस वैसे नॉन लिविंग है, लेकिन किसी लिविंग बॉडी के अंदर आ जाने से, लिविंग सेल्स के अंदर आ जाने से इट बिकम्स एक्टिव. Viruses do not show any molecular movement in them until they infect some cell. That is partly why they are in controversy about whether they are truly alive or not. Higher class में तो viruses के लिए एक sentence भी use किया जाता है. Viruses are in between living and non-living. Virus का कुछ characteristics living है और कुछ characteristics non-living. So they are considered in between what? Living and non-living. आउटसाइड लिविंग बॉडी अगर कोई वायरस है तो इट इज नॉन लिविंग. किसी लिविंग बॉडी के अंदर आने के बाद इट बिकम्स लिविंग. और अभी का जो सिचुएशन है, कोविड वाला सिचुएशन, यहाँ वायरस के बारे में कम से कम 2-3 सेंटेंस का नॉलेज आपके पास होना चाहिए. दे आर माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्शियस एजेंट, प्रोलिफिक एंड फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑल लाइफ फॉर्म्स. तो आपको ऑलमोस्ट सभी जगह पर क्या मिल जाएगा? वायरस. वायरस कॉमन था हम लोग के लिए. वायरल इन्फेक्शन हम लोग बोलते थे, लेकिन अभी वही वायरस वर्ड सुनते डर लगने लग जाता है. They can only, hello सर ये prolific मतलब? They are spread everywhere, means almost everywhere you can find them. Next, they can only replicate inside living cells of organisms. They can replicate का मतलब क्या? They can multiply their number. मतलब आपका बॉडी का सेल्स के अंदर जाके सेल्स को कंट्रोल करने लग जाता है. उन सेल्स का मशीनरी अपने काम के लिए लगा देता है. कैसा ऑर्गेनिज्म है? The study of viruses is called virology. हम तो बोलता है ये IIT JEE ये सबको मारो गोली. और अगर आप वायरोलॉजिस्ट बन सकते हो तो आपका डिमांड उनसे बहुत ऊपर होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया अब वायरस से जल्दी से फ्री होने वाला है नहीं. पहले भी वायरसेस प्रॉब्लम किया था और अभी भी प्रॉब्लम कर रहे हैं. तो यहाँ पे एक स्कोप है आपके लिए. क्या
कि आप वायरस का स्टडी में लग जाओ और आप बन जाओ एक वायरोलॉजिस्ट, तो आपका डिमांड देखना। सर आज हम पहली बार सुने वायरोलॉजिस्ट। पहली बार सुना ना, दुनिया में बहुत चीज और लाइफ में बहुत चीज पहले बार ही होती है। सो वायरसेस इन्फेक्ट होस्ट सेल्स टू रिप्रोड्यूस। आप एक काम कर सकते हो, अभी से वायरस का नॉलेज एक्वायर करो, एक डायरी बना लो, उसमें वायरस के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है आप लिखते जाओ। एक दिन आपके पास इतना डेटा होगा कि आपको कोई कंपनी बुलाएगा रिसर्च के लिए। वायरसेस इन्फेक्ट होस्ट सेल्स टू रिप्रोड्यूस। वायरसेस कैन लर्न टू अडेप्ट टू इम्यून रिस्पॉन्सेज। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वायरस के बारे में। अभी जो कोविड का सिचुएशन खत्म क्यों नहीं हो रहा है ये सिचुएशन खत्म क्यों नहीं हो रहा है, ये लंबा क्यों खिंचते जा रहा है? वायरसेस इंटेलिजेंट है, वायरसेस अडेप्ट कर लेता है। जैसे जैसे ह्यूमन बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है वायरस के अगेंस्ट, वायरस और अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। तो जो पुराना एंटीबॉडी बन चुका वो काम नहीं आएगा। तो आपने सुना होगा ये टर्म वेरिएंट, नया वेरिएंट आ गया वायरस का। हैव यू हर्ड दैट? हाँ सर। Yes. Yes, sir. वायरसेस आर मच मोर डिफिकल्ट टू ट्रीट, इसीलिए परेशान है दुनिया। देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हैंडल करना इजी है। कौन सा टाइप ऑफ मेडिसिन यूज करके बैक्टीरिया को हैंडल किया जा सकता है? एंटीबायोटिक। बट इट इज डिफिकल्ट टू मेक एंटीवायरल मेडिसिन। क्यों पता है आपको? हाँ सर, क्योंकि हम लोग को होस्ट सेल में डायरेक्ट अटैक वायरस करते हैं, उसका अडॉप्ट कर स्पेसिफिक एक लेता है। साइट है, तो एक लेकिन तो- बैक्टीरिया से अलग-अलग जगह। ओके, तो वायरसेस, एक तो वायरसेस अडेप्ट कर सकता है। सेकंड क्या है? सेकंड, वायरसेस आपका सेल का मशीनरी को यूज कर रहे हैं। आप वायरस को अटैक करने चाहोगे तो एक्चुअली आप किसको अटैक कर रहे हो? सेल को। सेल को, अपना ही सेल को अटैक कर रहे हो। तो ये इससे क्या होने वाला है? वायरस को मारने का कोशिश करने का मतलब क्या? खुद को ही नुकसान। खुद को मारना है। ओके, so the basic processes that are performed by living organism to maintain and repair their body structure and to continue life on earth are called what? Life processes. Are called what? Life processes. Okay, so examples of life processes: respiration, nutrition, excretion, growth, transportation of materials. These are life processes. कम से कम 2-3 नाम इज्जत के लिए याद रखना आप लोग, कि मैं कभी आपको पूछूं या कोई भी पूछे कि examples of life processes, बेस्ट एग्जाम्पल में रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन, ये 3 वर्ड तो आप दिमाग में सेट कर लो। और इन तीनों के बारे में डिटेल में आपका सिलेबस में डिस्कस किया हुआ है। साथ में ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेटरी सिस्टम इज आल्सो डिस्कस्ड। तो आपको पता है कि आपको जिंदा रहने के लाइफ प्रोसेसेस को रन करना है, एंड फॉर लाइफ प्रोसेसेस यू नीड एनर्जी। आपका बॉडी में इतना लाइफ प्रोसेसेस चल रहा है, उनको कैरी करने के लिए देयर इज नीड ऑफ एनर्जी। अब एनर्जी के लिए आपको चाहिए फूड एंड ऑक्सीजन। The raw materials for getting what? Food, for getting energy, they are what? Food and oxygen. आपको पता है कि फूड और ऑक्सीजन रिएक्ट करके आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। कौन सा रिएक्शन? बाय विच रिएक्शन? Cellular respiration. Cellular respiration, by the reaction called cellular respiration. Okay, so all living organism need energy to maintain the life processes. Life processes क्यों चाहिए? लिविंग के लिए। और लाइफ प्रोसेसेस को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। एनर्जी के लिए क्या चाहिए? फूड एंड ऑक्सीजन। और फूड ऑब्टेन करने का प्रोसेस, उसको यूज करने का प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं हम लोग। और फूड और ऑक्सीजन मिला के एनर्जी मिलने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेस्पिरेशन। तो इस चैप्टर में पहले हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? न्यूट्रिशन के बारे में, और फिर हम लोग बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। और आपको पता है क्या, जब आपकी बॉडी में रिएक्शंस होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होता है। डू यू नो व्हिच इज द वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन? जब आपका बॉडी में रेस्पिरेशन रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। क्या आपको पता है कि जब आप प्रोटीन यूज करते हो, जब आप एमिनो एसिड यूज करते हो, आपका बॉडी में क्या वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है? डू यू नो दैट? ग्लिसरॉल। यूरिया। दैट वेस्ट प्रोडक्ट इज यूरिया, जो आपको रिलीज करना होता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो आपको ये पता चल गया कि आपका लाइफ के लिए लाइफ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट है, और लाइफ प्रोसेसेस को रन करने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। एनर्जी के लिए आपको चाहिए फूड एंड ऑक्सीजन। ओके, सो इन द केस ऑफ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन ऑफ फूड। अमीबा के लिए कोई टेंशन नहीं, सामने खाना मिला, स्यूडोपोडिया से का हेल्प से फूड को क्या कर लेगा? एनगल्फ। क्या है प्रोसेस का नाम? क्लास 9 में मिला था, किसी को याद है? नेम द प्रोसेस बाय व्हिच बैक्टीरिया कैन Endocytosis. अमीबा कैन एनगल्फ फूड। एंडोसाइटोसिस। सो अमीबा को फूड लेने में प्रॉब्लम नहीं है, थ्रू सेल मेम्ब्रेन फूड अंदर आ जाएगा।
एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी अमीबा के लिए प्रॉब्लम नहीं है. डिफ्यूजन प्रोसेस, ऑक्सीजन विल एंटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिलीज्ड. Okay, exchange of gases or removal of waste may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. Entire surface is in contact with the environment. तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं. अगर हम बात करें किसका, अगर हम लोग बात करें लोअर ऑर्गेनिज्म में कोई टेंशन नहीं. लोअर ऑर्गेनिज्म में बॉडी सरफेस से एक्सचेंज हो जाएगा. लेकिन हायर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसका बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, ऑर्गन सिस्टम, ओके, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम. हायर ऑर्गेनिज्म का केस में क्या प्रॉब्लम है? हायर ऑर्गेनिज्म का केस में ऑर्गन्स आर इनसाइड द बॉडी और सरफेस यानी स्किन इज एक्सपोज टू एनवायरनमेंट. क्या आपका स्किन से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज हो सकता है क्या? नहीं सर. नहीं हो सकता. तो कौन सा पार्ट है इसके लिए, एक्सचेंज के लिए? विच पार्ट? Lungs are there. Okay. Multicellular organism में स्पेशल सिस्टम होगा फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस. एक्सचेंज हो गया, उसके बाद ईच सेल तक ऑक्सीजन और फूड पहुंचना चाहिए कि नहीं? हाँ सर. फूड कहाँ एब्जॉर्ब होता है आपका बॉडी में? स्मॉल इंटेस्टाइन. मेनली एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है इंटेस्टाइन में, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड देन इट गेट्स मिक्स विद ब्लड. अब इंटेस्टाइन से फूड ब्लड में आ गया, ऑक्सीजन लंग्स में, ब्लड में आ गया. फिर उस ब्लड को, ऑक्सीजन को, फूड को ले जाना है कहाँ पे? ईच एंड एवरी सेल ऑफ योर बॉडी. कौन सा सिस्टम चाहिए? नर्वस नहीं. कौन सा सिस्टम? सर्कुलेटरी सिस्टम. नर्वस सिस्टम मैसेज ले जाता है और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ योर बॉडी टू अनदर. कैसा मटेरियल? फूड, ऑक्सीजन, ये सब ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए. और आपको मैंने बताया था कि जब भी आपका बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन होगा, एसेंशियल सब्सटेंस के साथ साथ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होता है. मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट. और वो वेस्ट प्रोडक्ट को कहां तक पहुंचाना है? ब्लड को. सर्कुलेटरी सिस्टम पे वेस्ट प्रोडक्ट को कहां तक पहुंचाना है? नहीं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन. लार्ज इंटेस्टाइन में तो ऑलरेडी अनडाइजेस्टेड फूड रहेगा. विच इज द प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन योर बॉडी अगर पूछा जाए तो वो है किडनी. Kidney purifies blood. Kidney removes nitrogenous waste product, excess water, toxic product from your blood. Okay. So हम लोग यहाँ बात करें multicellular organism. In multicellular organism like human beings, only the cells of skin surface layer are exposed to the surrounding environment, and the rest of the body cells or the internal organs are not in contact with the surrounding environment. Hence, exchange of gases by diffusion may not be possible in these cells. और आपको मैं एक डेटा बताता हूं कि आपका लंग्स में ऑक्सीजन एक्सचेंज हो गया, ब्लड में आ गया. अगर डिफ्यूजन प्रोसेस से उसको आपका टो सेल तक पहुंचना है तो कितना टाइम लग जाएगा? कोई आइडिया है क्या? 10,000 years. हाँ, क्या चीज? 1000 साल या 10,000 साल? नहीं, अराउंड 3 years. अराउंड 3 years. ओके, 3 साल लग जाएंगे. तो 3 साल क्या आपका टो का सेल? आप अभी क्या बोला? मैं बोल रहा हूं कि जो ऑक्सीजन लंग्स में एब्जॉर्ब हो गया ब्लड में, ठीक है, वो ऑक्सीजन लंग्स से लेके टो सेल तक जाने में डिफ्यूजन प्रोसेस से अगर जाएगा ना, जो कि एक स्लो प्रोसेस है, तो 3 साल लग जाएंगे. क्या 3 साल तक आपका टो सेल वेट करेगा ऑक्सीजन के लिए, फूड के लिए? नहीं ना. सो एक सिस्टम चाहिए जो जल्दी से ले जाएगा. कौन सा सिस्टम है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. विच सिस्टम? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. Have you understood? Yes, Yes, sir. Thus, multicellular organisms require specialized organs or organ system for breathing, exchange of gases, transport of gases to meet the oxygen requirement. इसीलिए हायर ऑर्गेनिज्म, लोअर ऑर्गेनिज्म, एमीबा में जरूरत है क्या सर्कुलेटरी सिस्टम का? नहीं सर. एमीबा में कोई ऐसा सिस्टम चाहिए जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो? नहीं चाहिए ना. लेकिन हायर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में आपको स्पेशल ऑर्गन सिस्टम का जरूरत है. ओके, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. ओके, हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. To transport food and oxygen from the site of absorption to the site of respiration, there is need of which system? Transportation system. तो आपको मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूं. चैप्टर तो हो गया स्कूल में, बहुत हो गए.
What are the two types of circulatory system in your body? Mainly कौन सा दो type of circulatory system है, किसी को भी पता है? Sir, blood and veins. सर lymph and blood. Lymph and blood. किसने बोला lymph and blood? सर हम तो है, अब हमको पहचानता है कौन है, सर, बोलो समीर। एक बार। हेलो सर समीर। समीर, ओके समीर, हवा का झोंका। सो समझ में आ गया समीर? हाँ सर। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हाँ सर, ट्रांसपोर्टेशन को लेके। ट्रांसपोर्टेशन। सो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम, वो सिस्टम का नाम क्या है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। और मैंने आपको बोला था ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड। ड्यूरिंग बायोकेमिकल रिएक्शन मेनी वेस्ट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड एंड दिस वेस्ट प्रोडक्ट्स आर टू बी रिलीज्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन जो प्रोसेस है जिससे रिमूव होगा ये एक्सेस एंड अनवांटेड प्रोडक्ट्स इज नोन एज एक्सक्रीशन। क्या आप बता सकते हो मुझे कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट ब्लड से अलग कर देगा? Sir, kidney. किडनी। कितना किडनी? दो। Sir, एक. दो ह्यूमन बींग्स में दो किडनी आता। ओके, अगर मैं आपको पूछूं विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन योर बॉडी? Sir, small intestine. कार्बन डाइऑक्साइड lungs, कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स। ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो अब हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इसी टॉपिक के ऊपर चलेगा हम लोग का आज का क्लास और नेक्स्ट क्लास भी। न्यूट्रिशन। व्हाट इज न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। फूड इनटेक करना और फूड को यूज करना। फूड क्या काम आता है हम लोगों के, क्यों खाते हैं आप लोग? अक्षत, व्हाट इज द यूज ऑफ फूड इन योर बॉडी? एक यूज बता दो, व्हाई यू नीड फूड। अक्षत। सर कौन? अक्षत जैन। व्हाट इज द नीड ऑफ फूड? अक्षत जैन, वो खाना खाने में बिजी लगते हैं। देन केशव वर्मा, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द नीड ऑफ फूड इन योर बॉडी? एनर्जी। हाँ, एनर्जी, गुड। और प्रियल बाजोरिया, एनी अदर फंक्शन ऑफ फूड? growth and development. Ritika Roy, any other function of food? Sir, it helps us to provide energy and for the movement of our daily life. Main thing is the energy, growth and development, and then Yes, sir. repair Yes, sir, it of the helps body. us to repair our damaged body parts Okay, and repair gives us of the energy. body. Okay, energy. And it also acts as regulator. It controls various biochemical reactions in our body. So अगर मैं पूछूं न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन का मतलब प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। कौन हमको बताएगा टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एक वन वर्ड, Ingestion. ingestion. It is ingestion. Okay, then converting them into smaller molecules क्या बोलते हैं? वन वर्ड, डाइजेशन। digestion. उसके बाद can be absorbed by the body क्या बोलते हैं? Absorption. Absorption can be absorbed by the body, absorption. Then utilizing the component क्या बोलते हैं? assimilation is utilization, फूड का यूज होना बॉडी में। और यहाँ पे एक और स्टेप है जिसके बारे में यहाँ नहीं लिखा, रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, एंड दैट इज व्हाट? Egestion. Sorry, egestion. Last one is egestion. So egestion word specifically used होता है for release of undigested food. It is what? Egestion. So if I ask you what are the 5 steps of nutrition, और ये जो 5 steps है ये holozoic nutrition का टाइप है जो nutrition human beings में दिखाई देता है, that is holozoic nutrition. We will discuss in detail about that. So what are the 5 steps of nutrition अगर पूछा जाए? First one, ingestion, then digestion, then absorption, then assimilation, and then what? Egestion. So nutrients का मतलब होता है chemical substances that provide nutrition. फूड में जो केमिकल सब्सटेंसेस जो आपको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है उनको न्यूट्रिएंट बोलते हैं हम लोग। द मेन न्यूट्रिएंट ऑफ फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल। हाँ बोलो
सर वो एक्सक्रीशन और इजेशन में क्या difference? Okay, egestion is specifically used for release of undigested food, और excretion is the removal of any kind of metabolic waste. तो कौन सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम टर्म है, बड़ा टर्म कौन सा है जो ज्यादा सब्सटेंसेस को इन्वॉल्व करता है? एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन। और इजेशन स्पेसिफिकली यूज होता है किसके लिए? सर फूड, undigested food, release of undigested food. Have you understood? हाँ सर। So the main nutrients of food are carbohydrates, proteins, vitamins, minerals, lipids, and water. The source of energy and materials that we need to maintain life is the food we eat. आया समझ में? तो हम लोग को लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा हम लोगों को? So materials कहाँ से मिलेगा? Food. We have to consume food, and these are the functions of food. Food का functions क्या है? Food provides us energy. Food helps in growth and development. Food helps in regulation of various biochemical reactions. Especially आपका बॉडी में hormones, enzymes बनता कैसे है सब? ये hormones, enzymes के लिए proteins का जरूरत पड़ता है, और proteins को आपको consume करना पड़ेगा. Then it helps in repair. It helps in what? Repair of the body. नया cells बनेगा आपका बॉडी में कैसे? Proteins, lipids, carbohydrates का जरूरत पड़ेगा. So that can be obtained from food only. So ये importance of nutrition, and we discussed about functions of food. और ये बहुत easy topic, आपको इसके बारे में बचपन से कुछ न कुछ information होता है. Modes of nutrition. अगर मैं आपको बोलूं there are two main modes of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Auto का मतलब क्या समझते हो आप? Auto word का meaning का होना, मतलब नहीं, auto word का Self. self में ऐसा word meaning, one word meaning. Hetero का मतलब dependent, other. Auto, self, hetero, other. So autotrophic organisms are those organisms which can prepare their own food inside their body. आप बोलोगे सर हम लोग भी तो अपना खाना खुद ही बनाते हैं, आर बी ऑटोट्रॉपिक? नहीं, हम लोग अपना बॉडी में नहीं बनाते, हम लोग सिर्फ उस खाना को मॉडिफाई करते हैं किचन में. We don't prepare food, we modify food actually. Okay, if the food is actually prepared by other organisms, plants and animals. Actually plants are consumed by animals. तो animal का body में food कहाँ से आ रहा है? Plant से. Ultimately food कैसे बन रहा है? By the process of photosynthesis. So heterotrophic nutrition is a type of nutrition where organisms depend on others. किसी और का बना बनाया फूड कंज्यूम करने वाला ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है हेटरोट्रॉपिक? हेटरोट्रॉपिक. We are auto और hetero? हेटरोट्रॉपिक. तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पता ही है, जब भी बात करते हैं तो हम लोग के दिमाग में डायरेक्टली ग्रीन प्लांट्स आता है, लेकिन क्या सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है? कोई और ऑर्गेनिज्म है कि नहीं? Amoeba नहीं. There are some bacteria. There are some bacteria which can prepare their own food without light. Chemosynthesis, chemical reaction से. वो chemosynthesis है जिसके बारे में आपके बुक में कुछ नहीं बताया हुआ. आपके बुक में मेनली डिस्कशन किया हुआ है अबाउट व्हाट? फोटोसिंथेसिस. और फोटोसिंथेसिस आप जानते हो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फिर क्या चाहिए? सोलर एनर्जी. और इस एनर्जी को ट्रैप कौन करेगा? क्लोरोफिल. इस एनर्जी को ट्रैप कौन करेगा? क्लोरोफिल. सो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, इन सब का कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज. Glucose is the source of energy. बाद में ऑक्सीजन. Plants can prepare oxygen by the process of photosynthesis. और यही ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज कर देता है. ये ऑक्सीजन प्लांट्स भी यूज करता है. कौन सा प्रोसेस के लिए? Respiration. Plants use oxygen prepared by itself for respiration also. तो ज्यादा ऑक्सीजन जो प्रिपेयर हो गया वो रिलीज कर देगा एटमॉस्फेयर में. आया समझ में? प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस दिन में होता है या रात को? दिन में. फोटोसिंथेसिस डे टाइम में. रेस्पिरेशन प्लांट्स में रात को नहीं, दिन में रात सब टाइम में होगा. रेस्पिरेशन तो एनी टाइम होना पड़ेगा ना, एनर्जी प्रोडक्शन. हैव यू अंडरस्टूड? तो दिन में ओवरऑल रिलीज ऑफ व्हाट? प्लांट्स ओवरऑल कौन सा गैस रिलीज करता है डे टाइम में? कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डे डाइऑक्साइड टाइम में ओवरऑल रिलीज व्हाट? Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन. ओवरऑल रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. दिन में ओवरऑल रिलीज ऑफ ऑक्सीजन. रात में प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ऑक्सीजन प्रोडक्शन बंद हो गया ऑलमोस्ट. तो रात को प्लांट क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड. रात को प्लांट को कौन सा गैस का जरूरत ज्यादा है?
कार्बन Oxygen. ऑक्सीजन। तो क्या आप बेडरूम में प्लांट्स रखना चाहिए क्या आपको? नहीं Sir. नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बेडरूम में प्लांट्स रखने का मतलब बेडरूम में प्लांट्स को कौन सा गैस चाहिए रात के टाइम में? ऑक्सीजन। आपको भी कौन सा गैस चाहिए? आपको भी कौन सा गैस? ऑक्सीजन। तो प्लांट्स को बेडरूम में रखेगा तो कंपटीशन होगा बिटवीन यू एंड प्लांट्स फॉर व्हाट? ऑक्सीजन। और जो जीता वही सिकंदर। बेड में सोए सोए ऊपर जाएगा तो कैसा लगेगा? रौनक चौधरी, आवाज ही बंद हो गया। ओके, ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया लगता है। सर है क्या? ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन मिल रहा है क्या रौनक? हाँ सर पूरा। सांस लो एक बार तेज, बाबा रामदेव टाइप। लिया कि नहीं? हाँ सर। हाँ। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, देयर आर वेरियस टाइप्स। हम लोग 4 ही टाइप्स डिस्कस करेंगे। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एक टाइप है होलोजोइक, जिसमें ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर, सॉलिड फूड विच इज प्रिपेयर्ड बाय अदर ऑर्गेनिज्म। ओके, तो हम लोग तो ऐसा ही करते हैं, वी इंजेस्ट सॉलिड फूड। उसका क्या होता है? विच इज सब्सिक्वेंटली डाइजेस्टेड, बॉडी में डाइजेस्ट होगा, फिर एब्सॉर्ब होगा, और वो 5 स्टेप होगा। व्हाट आर दैट 5 स्टेप्स? फर्स्ट वन क्या था? इंजेशन, देन digestion, absorption, then assimilation and ingestion. जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये 5 स्टेप होता है, they are holozoic. Okay, these are 5 steps of holozoic nutrition. So human beings, animals and insectivorous plants are also holozoic. Insectivorous plants are also holozoic, याद रखना। इंसेक्टिवरस प्लांट एक का नाम बता सकते हो आप? Pitcher plant. The pitcher plant. Okay, then saprophytic plant, saprophytic nutrition. Saprophytic nutrition क्या होता है? Saprophytes क्या होता है? Those organisms which obtain food from dead and decaying matter. मशरूम देखा क्या आपने? Have you seen mushroom growing on dead wood? हाँ सर। Okay, so ये मशरूम जो है वो saprophyte है। Saprophytes में इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी। ओके, एंड ये लोग कैसे फूड ऑब्टेन करते हैं? क्या saprophyte डेड बॉडीज को खाते हैं क्या? आर दे कंज्यूमिंग डेड बॉडी? नो, वो डेड बॉडी कंज्यूम नहीं करते। वो लोग क्या करता है, अपना बॉडी से कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे डेड बॉडी के ऊपर, डेड बॉडी डाइजेस्ट होगा, फिर उसका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे। दे डोंट ईट डेड बॉडीज। डेड बॉडीज खाने वाला एनिमल्स को क्या बोला जाता है? The scavenger. They are called scavengers. So अगर आपको मैं पूछूं, give 2 examples of organism where holozoic nutrition is seen, एक ह्यूमन बींग्स याद रख लेना, दूसरा एमीबा याद रख लेना। एमीबा क्यों बोला हूं कि एमीबा इज द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म वेयर देयर इज व्हाट? Holozoic nutrition. Saprophytic nutrition का 2 एग्जांपल अगर बैक्टीरिया, फंगी याद रख सकते हो। अब ये पैरासाइट वो गेस्ट है जो आपका घर में आके आपको ही हार्म करेगा, आपका घर को हार्म करेगा। दे आर पैरासाइट। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो आपका बॉडी से फूड लेगा और आपको उसके अगेंस्ट में अच्छा ही नहीं, उसके अगेंस्ट में हार्म कर सकता है, और आपका बॉडी उसके लिए होस्ट है, वो गेस्ट है। यू आर द होस्ट। सो parasitic organisms obtains nutrients from living organism. The parasite obtain nutrients by living on or in the body of the host. या तो बॉडी के बाहर से ही आपका बॉडी से फूड ऑब्टेन कर लेगा, या आपका बॉडी के अंदर जाके। तो फ्लीज, लाइस एंड टैपवॉर्म, दे आर व्हाट? पैरासाइट। क्या आप ह्यूमन बॉडी का एक्सटर्नल पैरासाइट का नाम बता सकते हो? मॉस्किटो। इंटरनल पैरासाइट? टैपवॉर्म जैसे बैक्टीरिया भी है इंटरनल पैरासाइट, टैपवॉर्म। और एक और टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, वेयर 2 ऑर्गेनिजम्स लिव इन एसोसिएशन। 2 ऑर्गेनिज्म या उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म, दे लिव इन एसोसिएशन एंड दे आर हेल्पिंग, बेनिफिटिंग वन अनदर। फंगी एंड एल्गी, इन दोनों का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसका नाम है लिचेन और लाइकेन बोला जाता है। इसको लिचेन भी बोला जाता है, लाइकेन भी बोला जाता है, दोनों ही करेक्ट है। सो फंगी एंड एल्गी विच लिव टुगेदर इन लाइकेन्स। एल्गी कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। एल्गी ग्रीन होता है, उनके पास क्लोरोफिल, दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस।
but fungi possesses filamentous structure known as hyphae. fungi के पास कुछ root like structure होते हैं. They can absorb water, nutrients. ओके और वो वाटर और न्यूट्रिएंट्स एल्गी को प्रोवाइड करता है. एल्गी को फायदा मिला क्या? फंगी उसके लिए काम कर रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. और साथ में फंगी एक और एडवांटेज देता है एल्गी को, शेल्टर. इट प्रोवाइड्स व्हाट? शेल्टर. ओके एल्गी क्या फायदा देता है फंगी को? प्रिपेयर्स फूड. प्रिपेयर्स व्हाट? फूड. सो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन. सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन का एक और एग्जांपल एनिमल में आपको जानना चाहिए, और ये इंफॉर्मेशन आपके वो होना ही चाहिए एज अ बायोलॉजी आप जब पढ़ रहे हो. आपको पता है हर्बीवोरस एनिमल्स को एनर्जी कौन सा कार्बोहाइड्रेट से मिलता है मेनली? ग्लूकोज. हर्बीवोरस एनिमल्स को मेनली एनर्जी मिलता है सेल्यूलोज से, और हम लोग सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते. ह्यूमन बींग्स का मेन जो कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी का सोर्स है, वो है स्टार्च. और हर्बीवोरस एनिमल्स का मेन जो सोर्स है वो है सेल्यूलोज. हम लोग स्टार्च से को ग्लूकोज बना लेते हैं, और वो लोग सेल्यूलोज को भी ग्लूकोज बना सकते हैं अपना बॉडी में. दे कैन डाइजेस्ट सेल्यूलोज, वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज. हम लोग सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग का बॉडी में एक ऑर्गन फंक्शनल नहीं है. ऑर्गन है लेकिन फंक्शनल नहीं है. उस ऑर्गन का नाम पता है आपको? एनीवन? Why we cannot digest cellulose? Because of the non-functioning of one organ. कौन सा ऑर्गन? Sir, liver. अपेंडिक्स. लीवर नहीं. कौन? किसी ने बताया? अपेंडिक्स. 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 दैट ऑर्गन इज अपेंडिक्स. आपके बॉडी में अपेंडिक्स है, लेकिन आपको अगर अच्छा नहीं लगता आप डॉक्टर के पास जाके ऑपरेट करवा सकते हो, काट के फेंकवा सकते हो उसको. कोई काम का नहीं है बायोलॉजिकली, कोई वाइटल ऑर्गन नहीं है आपका बॉडी का, और कोई काम भी नहीं है. और लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाता है अपेंडिक्स से, इन्फेक्शन हो जाता है. ओके सो द बैक्टीरिया विच लिव इन द एलिमेंट्री कैनल ऑफ हर्बीवोरस एनिमल, मतलब उस अपेंडिक्स का ही बात हो रहा है. द बैक्टीरिया डाइजेस्ट सेल्यूलोज फाउंड इन द एलिमेंट्री कैनल ऑफ द होस्ट यूजिंग सेल्यूलेज. वो लोग एक एंजाइम यूज करते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए. एंजाइम का नाम सेल्यूलेज. एक्सेस न्यूट्रिएंट्स आर एब्सॉर्ब बाय द होस्ट. तो बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर देता है उसको, किसको? सेल्यूलोज को, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम सेल्यूलेज. और बैक्टीरिया को क्या मिलता है? क्या बैक्टीरिया को क्या बेनिफिट मिला? बैक्टीरिया को क्या बेनिफिट मिला? सर अगर अपेंडिक्स नॉन फंक्शनल है तो सर हाँ. फिर मतलब उसमें कभी कभी पेन उठना और ये सब क्यों होता है सर? वो इन्फेक्शन हो जाता है. मतलब अगर वो नॉन फंक्शनल है, उसमें कुछ काम ही नहीं है उसका, तो फिर उसमें काम नहीं है, लेकिन उसमें फूड पार्टिकल एलिमेंट्री कैनल का कनेक्टेड पार्ट है. फूड का कोई पार्टिकल उसमें फंस गया, रह गया, फिर उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो गया. बैक्टीरिया तो हम लोग का बॉडी में है ही. हाँ सर. तो वहां पे हार्मफुल बैक्टीरिया अगर ग्रो हो गया, फिर वो इन्फेक्शन हो गया, स्वेलिंग होगा, साइज उसका बढ़ते जाएगा. आपको अपना इंटेस्टाइन का राइट साइड में अगर पेन फील होता है तो आप समझ जो टाइम आ गया है. क्या चीज का? सर ऊपर जाने का. ऊपर जाने का नहीं, टाइम आ गया ऑपरेशन का. हर बात में ऊपर ही जाने का प्रोग्राम है क्या? सर इससे अच्छा तो उसको पहले ही निकाल के फेंक दो ना. हाँ हाँ, बहुत कंट्री में हाँ तो सर, जो- वही. बहुत कंट्री में जो एथलीट्स होता है ना, वो लोग स्टार्टिंग में ही अपना अपेंडिक्स कटवा देते हैं. और आप लोग देखो, थोड़ा सा भागने के बाद कहीं पेन फील होता है कि नहीं राइट साइड में? हाँ सर. हाँ, मतलब तो हाँ, वो बहुत दिन बाद प्रॉब्लम अगर अपेंडिक्स ही करता है वो प्रॉब्लम. ठीक है. अब बात करें इंसेक्टिवरस प्लांट्स. मैंने क्या बोला था? व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज सीन इन इंसेक्टिवरस Sir. प्लांट? Sir, holozoic. होलोजिक. लेकिन मैं एक Sir. बात और बता देता हूँ, जस्ट वेट. एक बात और बता देता हूँ. इंसेक्टिवरस प्लांट में होलोजिक न्यूट्रिशन के साथ साथ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी होता है. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. देखो यहाँ पे ग्रीन है वो. दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट वो लोग को इंसेक्ट खाना पड़ता है प्रोटीन के लिए, बिकॉज दे कैन नॉट एब्जॉर्ब. उनके पास नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी नहीं है, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन प्रोटीन बनने के लिए चाहिए. दे कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल. आपको पता होगा कि प्लांट्स के लिए एनपीके बहुत जरूरी है. एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटाशियम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन. और इंसेक्टिवरस प्लांट दे कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल. सो उनको इवोल्यूशन में क्या हो गया उनको इंसेक्ट खाने लायक प्लांट बना दिया, इंसेक्टिवरस प्लांट. ओके, कोई क्वेश्चन पूछ रहा था मुझे कुछ? सर हाँ सर, मतलब ह्यूमंस में तो अपेंडिक्स नॉन वर्किंग होते हैं, बट सर हर्बीवोरस सर Animal. एनिमल्स में वर्किंग होता है क्या? हाँ हाँ, वर्किंग, फंक्शनल.
ठीक है सर। तो हर्बीवोरस और एनिमल और हम लोग के बीच में कुछ इवोल्यूशनरी रिलेशन है कि नहीं? हाँ है, रिलेटेड है कि नहीं हम लोग? ओके है सर। ओके, thanks to the background noise. So आज का डिस्कशन यहीं पे स्टॉप करता हूं मैं, और